Hello everyone, welcome to another class. And in today's class, we are going to take up a very important topic from the Unit 2 of your book of 11th Standard, that is an entrepreneur. And the title of today's session is Entrepreneurial Values, Attitudes and Motivation. So specifically in today's class, we are going to talk about the attitudes of an entrepreneur. Believe me on this that this is something very important and crucial when you talk about the subject entrepreneurship. When you think about the term entrepreneurs, it is very important to understand what exactly an entrepreneur is. So let's have a look towards the content of today's class and start. Let's begin the class. These are the points under discussion in today's class. We are going to talk about these 4 points. The first one is definition of the word attitude. Second one is features of attitude. Third one is sources of attitudes. And fourth one is essential attitudes of an entrepreneur. बच्चों आप ये मान के चलिए कि ये इतना important टॉपिक है. इट्स easy to understand, but this is marks taking topic. For sure you will get an examination question from this specific topic. So what you are waiting for? Let's start today's class. First point, features of attitude, and let's start with the definition of attitude. Now, what is attitude? In simple language, attitude means the way of looking towards something, the way of observing something. For certain people, work is a challenge. For people with positive attitude, work is celebration. कई लोगों के लिए काम एक चैलेंज के जैसा लगता है, कई बच्चों को पढ़ाई चैलेंज लगती है, पर कई लोगों को काम जिनका एटीट्यूड पॉजिटिव है उन्हें काम एक सेलिब्रेशन लगता है. व्हेन वी से द वर्क इज अ सेलिब्रेशन, you are not only talking about the work, you are talking about your own observation of the work, your own observation of the studies, your own observation of hard work. And talk about anybody who has done anything in this world, they have always taken their work as a celebration. Okay, so let's talk about the first point. What is an attitude? Attitude constitute an important psychological attribute. It is mental, it is internal, it all stands here. The 12-pound mass among our shoulders, it is out there, of individual which shape their behavior. Actually, whatsoever we are doing, whether we are sleeping throughout the day, whether we are wasting time throughout the day, whether we are working hard throughout the day, it all comes on the basis of our attitude. आपको पता होना चाहिए कि जब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, आपकी नींद आराम सब चले जाते हैं, एंड यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर वर्क, योर स्टडी एंड योर गोल्स. Same happens with entrepreneurs as well. And you all know that becoming an entrepreneur is a challenge. It's not that easy. Second point, it may be defined as the way a person feels about something, a person, a place, a commodity, a situation, or an idea. ये बच्चों एक तरीका है सोचने का किसी व्यक्ति के बारे में, किसी स्थान के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में या किसी सिचुएशन के बारे में. Are we getting it? There are certain people. अब मैं देखिए एग्जाम्पल देता हूँ. पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लव टूवर्ड्स एन ऑर्गेनाइजेशन. पॉजिटिव एटीट्यूड है, एक व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, वो कहता है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को अपना सब कुछ मानता हूं, तो मैं यहाँ पे लेट नहीं आ सकता इवन इफ अदर्स आर कमिंग. मैं यहां से जल्दी नहीं जा सकता इवन इफ अदर्स आर लिविंग. ये उसका एटीट्यूड होगा अपने वर्क प्लेस की तरफ. एक बच्चा सिटिंग लगाता है, बैठता है 4 से 5 घंटे की पढ़ाई के लिए, उसका एटीट्यूड क्या होना चाहिए कि आई रिस्पेक्ट माई वर्क, आई रिस्पेक्ट माई स्टडीज, तो हाउ कैन आई गेट अप फ्रॉम माई सिटिंग within 2 hours or 3 hours? I have to give 5 hours to my sitting. And that's how when people are having positive attitude, they grow,
they achieve their goals, they achieve their targets, and then they become, in demand for everyone. So एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट. और एक और आपको साधारण सा वर्ड बताता हूँ एटीट्यूड के ऊपर, जो आपका नजरिया है. नजरिया है, देखने का अंदाज है किसी काम के प्रति. चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. फीचर्स ऑफ एन एटीट्यूड affects behavior. Attitudes play a pivotal role in shaping behavior. जिस व्यक्ति का बिहेवियर आपको पसंद है, एक्चुअली वो अपने एटीट्यूड को ढाल रहा है और एटीट्यूड उसके बिहेवियर को ढाल रहा है. Individuals naturally strive to maintain consistency between their attitudes and actions. और बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो अपने एक्शंस को अपने एटीट्यूड के द्वारा, एक द्वार बना रखा है उन्होंने एटीट्यूड का. तो वेन एवर दे आर डूइंग सर्टेन एक्शंस, वो उस द्वार से उन एक्शंस को गुजारते हैं. एंड इफ द एटीट्यूड इज पॉजिटिव, आप देखते होंगे कई बार कई लोग ट्रबल में, चैलेंजेस में, मुसीबत में भी मुस्कुराते रहते हैं. उन्हें पता है दैट दिस इज द राइट वे टू गेट थ्रू इट. आर यू गेटिंग इट? सो ये एक तरीके का द्वार है, एटीट्यूड, थ्रू विच योर एक्शन गोज, योर बिहेवियर गोज. एंड इफ योर एटीट्यूड इज वेरी पॉजिटिव, your behavior will be positive, your actions will be positive, and you will become a likable person. And always believe me on this, that likability wins. Likability wins. ठीक है, जो लाइकेबल बनता है वही हमेशा जिंदगी में जीतता है. When there is no external intervention, attitudes can directly influence behavior. The alignment between attitude and behavior is a key psychological phenomenon. और बच्चों, ये ना सेल्फ कंट्रोल है, ये सेल्फ चिस्लिंग है, कि अपना एटीट्यूड अच्छा बनाना, अपने आप को यू नो सोसाइटी के लायक बनाना. इफ अदर्स आर नॉट बिकमिंग, दैट्स नॉट योर पेन एरिया. You have to work according to your own attitude towards place, people, person, commodities, and your work too. Are we getting it? Because if you are not having positive attitude, you are having negative attitude, and the impact of negative attitude is adverse. It always bad. Okay. Next point is invisible nature. ये दिखाई नहीं देता, पर होता आपके शरीर के अंदर ही है, आपके थॉट्स में ही ये जनरेट हो रहा होता है. You cannot see it, but yes, it is out there inside you. Invisible nature. Attitudes are inherently invisible, existing as psychological phenomena that cannot be directly observed. You cannot see it directly in people. However, their presence can be inferred by observing their consequences. Yes, अगर आपके बिहेवियर से आपको अच्छे consequences मिल रहे हैं, people are appreciating you, people are liking you, people are liking your work, तो आपका attitude but obvious positive. And if the vice versa is happening, you are doing certain things and people are not liking you, not appreciating you, not liking your presence, that means you have to work on your attitude. Fourth point. For instance, a highly productive individual may indicate a positive attitude towards their work. अब बच्चों, काम का मतलब सिर्फ जॉब पे जाना नहीं है. काम का मतलब है एनीथिंग यू आर डूइंग. फॉर एग्जाम्पल, यू आर वॉचिंग टीवी, फॉर एग्जाम्पल यू आर यूजिंग मोबाइल फोन. तो उन्हें ये लगता है टीवी हाफ एन आवर, मोबाइल फोन हाफ एन आवर, and 23 hours for my rest of day. So any work they'll do, they will let that work pass through the gate of their attitude. Showcasing indirect manifestations of attitudes. तो वो जो भी काम करते हैं उनमें उनके एटीट्यूड का प्रदर्शन होता है. तो एटीट्यूड इज वेरी पावरफुल. और बच्चों, जितने भी लोग आज समाज में कामयाब हैं, दे मस्ट हैव स्टार्टेड. आप याद रखिएगा, जितने भी आप कामयाब लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट देख लीजिए, एंटरप्रेन्योर्स देख लीजिए, प्लेयर्स देख लीजिए, सिंगर्स देख लीजिए, एक्टर्स देख लीजिए, यू चेक आउट एनीबॉडी, दे हैव ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम जीरो. जीरो से स्टार्ट किया हुआ है. बट वो इतनी आगे क्यों बढ़े? क्योंकि उनका जो एटीट्यूड था, नजरिया था, चैलेंजेस के प्रति भी, वो सेलिब्रेशन का. जब आप अपने
काम को सेलिब्रेट करते हैं ना, तो चैलेंजेस भी ना उस सेलिब्रेशन का पार्ट बन जाते हैं. बट इफ यू आर नॉट लाइकिंग योर वर्क, तो इवन द पॉजिटिव थिंग्स इमर्जिंग आउट ऑफ द वर्क, वो आपको नेगेटिव बना देती है. तो यू शुड मेक डेवलप योर टेंडेंसी इन अ वे दैट व्हाट्स एवर यू आर डूइंग, उसे पास करिए उस द्वार से जो पॉजिटिव एटीट्यूड का द्वार है, तो आपके अंदर क्रिएटेड है. ओके. थर्ड पॉइंट, एक्वायर्ड ओवर टाइम. Attitudes are not innate, rather they are gradually learned through a person's life. कि इंटरनल नहीं होते हैं, आपकी लाइफ से, आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से आप इनको सीखते हैं, इसको डेवलप करते हैं. द प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन बिगिंस इन चाइल्डहुड एंड कंटिन्यूज टू इवॉल्व ओवर टाइम. ये बचपन में क्रिएट हो जाता है, बिकॉज यू स्टार्ट लिविंग योर लाइफ फ्रॉम फर्स्ट डे ऑन दिस अर्थ ऑनवर्ड्स, और ये बचपन से डेवलप होना शुरू हो जाता है. Family members exert significant influence during the early stages of attitude development. क्योंकि बच्चों, जो बच्चा होता है वो डे वन से फैमिली मेंबर्स के साथ रहता है, तो जैसा एटीट्यूड फैमिली मेंबर्स उसे हेल्प करते हैं डेवलप करने में, वो उसी प्रकार का एटीट्यूड फॉर्म कर लेता है. सर्टेन फैमिलीज आर देयर, दे आर वेरी सपोर्टिव टू देयर किड्स, और वो उन्हें छोटी छोटी बात पे गाइड करते हैं, सो दैट जो भी उनकी चिस्लिंग हो रही है, जो भी उनकी काविंग हो रही है, वो पॉजिटिविटी की तरफ. फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चा जैसे पढ़ रहा होता है, तो पेरेंट्स कई बार उसे कहते हैं, शैल आई गिव यू अ ग्लास ऑफ मिल्क, शैल आई गिव यू अ कप ऑफ टी. उसका मतलब ये होता है कि जो तुम काम कर रहे हो, इट्स अ गुड वर्क, और इसको फॉर्ज करो, इसको फॉस्टर करो, इसे डेवलप करो, पर इसे स्ट्रॉन्ग करो. तो उसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है. ओके, अ चाइल्ड हैज स्टडीड फॉर 10 मिनट्स, पेरेंट्स ने कहा होगी कोई बात नहीं, अब बाद में पढ़ लेना है. तो वो भी एक तरीके का एटीट्यूड बच्चे में धीरे धीरे निगेशन ऑफ वर्क एंड स्टडीज का डेवलप हो जाता है. तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ यू आर ब्रिंगिंग, और हाउ वी आर ब्रिंगिंग अप आवर चाइल्ड. तो वो अपना एटीट्यूड फॉर्म कर लेते हैं. तो हर चीज में थोड़ा थोड़ा कंट्रोल बच्चे को सिखाया जाना चाहिए, इन ऑर्डर टू लेट हिम अंडरस्टैंड, नॉट द प्राइस ऑफ एवरीथिंग बट वैल्यू ऑफ एवरीथिंग. Not the price of everything, but the value of everything. But sometimes it happens vice versa. We tell them the price of everything, but we never tell them the value of everything. So there is a big difference between telling kids price of everything and value of nothing. Okay, price versus value. आप एग्जामिनेशन में भी इसको लिख सकते हैं, प्राइस वर्सेस वैल्यू. हमें कीमत तो हर चीज की पता होती है, पर उसकी हमें वैल्यू नहीं पता. Pervasiveness, it spreads. Formed during the process of socialization, attitudes can relate to a wide arrays of subjects in the world. बच्चों, ये सोशलाइजेशन के थ्रू और डेवलप होता है, और ये दुनिया में बहुत सारे महत्वपूर्ण जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. Individual may hold positive or negative attitudes towards various aspects, including religion, politics, politicians, and countries. So बच्चों, जब आपका एटीट्यूड नेगेटिव हो जाता है, तो आप हर चीज को ना उसी नजरिए से देखने लग जाते हैं. चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो कंट्रीज हो. तो आपको एक ब्रॉड माइंडेड पर्सन बनना है. और ब्रॉड माइंडेड अब तब बनते हैं जब आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करने की रेगुलर कोशिश करते हैं. अब पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है, कि अगर सिचुएशन नेगेटिव भी है, उसके अंदर आपने कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर ढूंढना है. तो क्या होगा, वो सिचुएशन आपको उतनी हार्श नहीं लगेगी जितनी नेगेटिव एटीट्यूड से आपको हार्श लगने लग जाएगी. बट इफ यू आर डेवलपिंग, सीइंग समथिंग like religion, politics, politicians, countries, or objects, a person, तो हर चीज के अंदर से आपने कोशिश यही करनी है, यू हैव टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम पॉजिटिविटी. नेगेटिविटी आपका काम नहीं है. अगर आप नेगेटिव इकट्ठा करने लग जाएंगे, तो इट विल लैंड अप इन डेवलपिंग यू एन ईगोइस्ट पर्सन. और बच्चों, ईगो हर काम के लिए खराब है. खुद के लिए खराब है, जॉब के लिए खराब है, प्रोफेशन के लिए खराब है, पढ़ाई के लिए खराब है. It is not good. So it is always recommended that you should keep yourself in control, observe the value of everything, not the price of everything, and develop positive attitude.
और जितना ये पॉजिटिव बनता जाएगा उतने ही आप एक्सेप्ट किए जाने लग जाएंगे खुद के द्वारा और समाज के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ एटीट्यूड। अब एटीट्यूड किन किन सोर्सेज से आता है, लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स इट। और ये सब इट्स अ पार्ट ऑफ योर करिकुलम, या फिर करिकुलम का पार्ट है। फर्स्ट पॉइंट इज डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस। एटीट्यूड डेवलप होता है डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंसेस के द्वारा। The quality of a person's direct experience with an object or a situation significantly influences their attitude towards it. तो जो भी आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है किसी पर्सन के साथ, किसी ऑब्जेक्ट के साथ, वो आपके एटीट्यूड को डेवलप करने में मदद करता है। फॉर इंस्टेंस, अ वर्कर्स पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर जॉब may be attributed to finding the job challenging and having supportive supervisor and co-workers. एक वर्कर अपनी जॉब को पॉजिटिव कैसे देखता है, उसे ये तो पता है कि जॉब में चैलेंजेस है, पर पॉजिटिविटी की एक वजह है कि जो मेरा सुपरवाइजर है, जो मेरे को वर्कर्स हैं, वो बहुत सपोर्टिव है। तो जब आपको डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंसेस अच्छे मिलते हैं या आप अच्छा उन्हें बनाते हैं, तो आप पॉजिटिव एटीट्यूड को फॉर्ज करते हैं, डेवलप करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जामिनेशन में हम इनको यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट इज ग्रुप एसोसिएशन। ग्रुप affiliations play a crucial role in shaping attitudes. Individuals are influenced by attitudes of other group members, whether it be family, work, peer or cultural group. जब आप ग्रुप्स में रहते हैं तो ग्रुप के लोग आपके एटीट्यूड को बहुत हद तक इफेक्ट करते हैं, क्योंकि बच्चों जब हम लोगों की बात बार बार सुनते हैं, लगातार सुनते हैं, तो एक लेजिबल मार्क, एक इम्पैक्ट हमारे दिमाग में उन बातों का रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ दोस्त हैं, वो हमेशा आपकी तारीफ करते हैं, यू आर अ वंडरफुल पर्सन, तुम्हें देख के मेरा दिन बन जाता है, यू आर सच सो सक्सेसफुल, देखना तुम आगे कितने कामयाब होगे। जब भी आपको आपका दोस्त इस प्रकार की बात कहेगा, तो मेरी बात हमेशा याद रखिएगा कि आपके दिमाग पे एक इम्पैक्ट पड़ता है, दिस पर्सन इज राइट फॉर मी एंड आई शुड स्टे इन हिज कंपनी रादर देन स्टेइंग इन द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स दोज हु crib about you or say bad things about you. Okay, the attitude towards products, ethics, and other subjects are often strongly influenced by valued groups association. और जो भी आपका एटीट्यूड है किसी प्रोडक्ट के प्रति, अब आपके फ्रेंड सर्कल में, आपकी फैमिली में, आप कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट यूज करते हैं, पापा उसकी तारीफ करते हैं, मम्मा उसकी तारीफ करती है, सिस्टर उसकी तारीफ करती है और आपका ब्रदर उसकी तारीफ करता है, तो बट ऑब्वियस है आपको भी ये लगेगा दैट दिस प्रोडक्ट इज यू नो इज क्रिएटेड फॉर द सेक ऑफ एप्रिसिएशन ओनली। और अगर वो उसको लाइक नहीं करते, तो बट ऑब्वियस है यू विल स्टार्ट फॉर्मिंग एन ओपिनियन with their opinion that you should not be like that product. Same happens, uh, with certain ethics. अब देखिए कई घरों के अंदर हेल्पिंग एंड गिविंग alms टू beggars is considered a nice job. कई घरों में मना करा जाता है, तो एथिक्स पर भी ना आपके इम्पैक्ट पड़ता है उन ग्रुप्स का जिस ग्रुप के आप पार्ट होते हो। एंड अदर सब्जेक्ट्स आर ऑफन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय वैल्यूड ग्रुप एसोसिएशन। तो आपकी बहुत सारी चीजें जो है वो उस पर डिपेंड करती है जो कंपनी आप सारी जिंदगी अपने साथ रखती है। आप ऑब्जर्व करते हैं आजकल कई लोग लोनर्स बन गए हैं, दे आर हैविंग लेसर फ्रेंड्स और नो फ्रेंड्स एट ऑल। द रीजन इज either they are not liking that company or they do not want to get their attitude diverted because of that company. So group association also plays a key role in developing your attitude. एक तो आप डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस से करते हैं और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रुप्स दैट यू हैव जॉइंड। थर्ड वन इज इन्फ्लुएंशियल others. Personal contact with influential individuals such as respected friends, relatives, and experts can shape and change a consumer's attitude. तो बच्चों कुछ इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स हैं, रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो भी आपके एटीट्यूड को चेंज करते हैं व्हेन यू स्टे विद देम। ओपिनियन लीडर्स हु होल्ड स्वे ओवर देयर फॉलोअर्स। अब आप देखिए कई लीडर्स ऐसे होते हैं, वो शायद आपको नहीं पसंद होंगे,
पर उनके फॉलोअर्स को बहुत पसंद है, क्योंकि देयर वर्ड्स, देयर लीडर्स वे ऑफ थिंकिंग एंड द पीपल दोज हु आर फॉलोइंग देम, देयर वे ऑफ थिंकिंग इज सिंकिंग, दैट्स व्हाई दे आर लाइकिंग ईच अदर। बट हो सकता है कि द वे दे बोथ आर थिंकिंग यू डू नॉट थिंक, सो यू डू नॉट लाइक them. This happens, okay? Opinion leaders who hold sway over their followers can significantly impact attitudes एंड परचेजिंग बिहेवियर। अगर आप मार्केटिंग की बात भी करते हैं तब भी ये होता है, देयर आर सर्टेन पर्सनालिटीज। अब आप ऑब्जर्व करते हैं कि व्हाई सेलिब्रिटीज एंडोर्स सर्टेन प्रोडक्ट्स, क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जो लाखों लोगों द्वारा लाइक किए जाते हैं, तो वो अगर किसी प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं और बार बार करते हैं, तो आपको लगता है इफ ही इज डूइंग इट, ही कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। Advertisers leverage this influence using relatable figures and slice of life commercial. तो advertisers, uh, relatable figures को use करते हैं in order to influence people, those who like those, figures. So बच्चा, जो आपका attitude है वो affect होता है direct personal experiences से, जिन ग्रुप्स के आप पार्ट है उनसे, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स के हो, और through certain influential individuals, friends, experts, and because you like them, you like the way they are working, you always try to follow what they are saying. So how you develop your attitude, these are the ways, these are the sources of attitude. Let's move on to third point, essential attitudes of an entrepreneur. और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा आई ओपनर है। मैं जब भी इस टॉपिक को पढ़ाता हूँ, और मैं कई साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि एवरी टाइम आई लर्न समथिंग न्यू इन दिस टॉपिक। essential attitudes of an entrepreneur, this is the third point। तो बच्चों, इसमें हम बात करेंगे नौ एटीट्यूड्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। उसमें पहला है पैशन फॉर द बिजनेस, सेकंड इज ट्रस्टवर्दीनेस एज एन एग्जांपल, थर्ड वन इज फ्लेक्सिबिलिटी विद कोर वैल्यूज, fearlessness in the face of failure, timely decision making, self as a major asset, ego management, self belief, acceptance of criticism and admission of mistakes, and strong work ethic. So let's take them, these points up one by one. Passion for the business. Successful entrepreneurs harbor a deep passion for their work. This passion serves as a driving force during challenging moments and inspire others to collaborate. It creates a work environment where people are motivated to contribute positively. बच्चों, एक ना पैशन है, एक आपका जुनून है आपके काम के प्रति, और आप याद रखिएगा, आपका इंटरेस्ट तो मैटर करता ही है। उसके बाद when that interest gets converted into a passion, which is junoon, and passion is into rigidity that you have to become successful. For example, being a student in your lifetime, you are working, studying for 3 hours a day, for example, 3 hours a day, or suddenly with the help of a mentor or some motivational session, you started studying 6 hours. So but obviously when you're studying 6 hours, you would have beaten the person when you were studying 3 hours. अब जब आप अपने बिजनेस को करते हैं, तो आपके अंदर है ना ये इंस्टिंक्ट डेवलप हो चुकी है कि ज्यादा काम करने से मैं ज्यादा आगे बढ़ सकता हूँ। नॉर्मल लोग अपने बिजनेस को 3 घंटा देते हैं, 5 घंटा देते हैं, आपने 10 आवर्स देने शुरू कर दिए। तो बट ऑब्वियसली दिस पैशन सर्व्स एज द ड्राइविंग फोर्स इन चैलेंजिंग मोमेंट्स एंड इंस्पायर अदर्स टू कोलैबोरेट। जब लोग देखते हैं कि वी हैव टू वर्क विद सच अ वर्कहॉलिक पर्सन, जो खुद भी काम करते हैं और हमसे भी काम लेते हैं, तो दे विल कंट्रीब्यूट एवरीथिंग फ्रॉम देयर साइड। ऐसा जो पैशन है क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट वेयर पीपल आर मोटिवेटेड टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली, और लोग तब है ना कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं इन सच एन एनवायरनमेंट, जहां पे द पर्सन इज रनिंग द फर्म और द मैनेजर विद देम हु रन्स दैट कंप्लीट डिपार्टमेंट, वो उसके पैशन को देख के दे डेवलप देमसेल्व्स। मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं जिन्हें मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो बीइंग मैनेजर्स या बीइंग टीम लीडर्स इतने स्ट्रांग थे कि उनके साथ जो भी लोग जुड़ते थे ना, वो कामयाब हो जाते। तो इट इज अबाउट दैट। ट्रस्ट वर्दीनेस एज एन एग्जाम्पल,
इंटेग्रिटी, सच्चाई, लोग आप पे ट्रस्ट कर सके, यू आर अ मैन ऑफ वर्ड्स। अब क्या है, entrepreneurs build confidence among their teams and customers by exemplifying trustworthiness. A culture of integrity fosters a positive working environment and enhances relationship with stakeholders. आप मैन ऑफ वर्ड्स बन जाइए, आप ऑफिस टाइम पे आइए, आप जो बात कहे उससे पीछे ना हटे, चाहे उससे कितना बड़ा नुकसान हो रहा हो, तो आपका ना ट्रस्ट लोगों पे बनना शुरू हो जाए। आप किसी से भी बात करेंगे ना, आपके पहले 5 मिनट की बात से आपका ट्रस्ट पता चल जाता कि आप कितने ट्रस्ट वर्दी। आर वी गेटिंग इट? लोगों की हाँ में हाँ ना मिलाए, जो सही बात है वो आप कहे, चाहे उसमें आपका नुकसान हो रहा हो। तो लोगों को ये पता चलता है कि ही इज नॉट अ पर्सन जो हाँ में हाँ मिलाने वाला, ये वो पर्सन है जो अपना ओपिनियन रखता है। एंड व्हेन यू आर कीपिंग योर ओपिनियन, तो कोई वीक आदमी वीक आदमी अपना ओपिनियन नहीं रख सकता। वीक आदमी क्या पहचान है, वो कि दूसरों की हाँ में हाँ मिलाएगा। बट एक स्ट्रॉन्ग आदमी का क्या ट्रेट है कि वो अपना ओपिनियन रखता है। Are you getting it? So trustworthiness is an example. Or for business, it is something which works like a glue. Flexibility with core values. आपको flexible लचीला होना चाहिए core values के साथ. While entrepreneurs embrace flexibility in plans and strategies, they remain unwavering in their core values. This commitment ensures a consistent ethical foundation even amid changing circumstances. ये flexible होते हैं प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज के साथ, इन्हें पता है कई बार प्लान्स काम नहीं करते, कई बार हो सकता है कि आपने कोई टाइम कमिट किया हो किसी को और आप टाइम पे ना पहुंच पाए, ये नहीं समझ में आता है। पर इन्हें ये पता है कि वहां पे जाकर झूठ नहीं बोलना, उन्हें यही कहना है कि सर बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, बिकॉज आई स्टार्टेड लेट फ्रॉम माई होम। तो ये क्या है, ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी विद कोर वैल्यूज दिखाता है, प्लस आपकी अनवेवरिंग स्ट्रेंथ दिखाता है टुवर्ड्स कोर वैल्यूज। और प्लान्स और स्ट्रेटजीज के साथ आप फ्लेक्सिबल रहते हैं। कई बार आप प्लान बनाते हैं, प्लान पूरे नहीं हो पाते हैं, तो आप क्या करते हैं, नो वरीज, विल मेक नेक्स्ट टाइम अ बेटर प्लान एंड वी विल प्रिपेयर आवरसेल्व्स बेटर टू फॉलो अप दैट प्लान। तो देयर फ्लेक्सिबिलिटी विद देयर कोर वैल्यूज, दिस इज द पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, फियरलेसनेस इन द फेस ऑफ फेलियर। बच्चों फेलियर किसको नहीं आया? हर किसी को आया है, और हर कोई इस फेलियर के बाद ही आगे बढ़ा। Entrepreneurs views failure as an opportunity to learn and grow. फेलियर्स तब तक फेलियर्स नहीं है जब तक आप उनसे सीख रहे हैं। एक बार आपने अपने फेलियर से सीखना बंद कर दिया, दे हैव बिकम एन अल्टीमेट फेलियर। द विलिंगनेस टू टेक रिस्क एंड लर्न फ्रॉम सेटबैक्स इज अ हॉलमार्क ऑफ अ रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योरियल माइंड। तो एक एंटरप्रेन्योर को पता है कि व्हेन आई स्टार्टेड द वेंचर, तो ये तो आगे रहे, तो इससे या तो सीख लिया जाए या फिर इसे डर के दब के भाग जाया जाए, तो ऐसा वो नहीं करता। Timely decision making. Entrepreneurial success often hinges on making decisions at time, on time. While planning and thoughtful consideration are valuable, procrastination का मतलब बच्चों होता है a person who delays action. A person who delays action, or delaying of action is procrastination. कैन लीड टू मिस्ड अपॉर्चुनिटी। तो इन्हें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स को प्रोएक्टिव रहना चाहिए और टाइमली डिसीजन लेने चाहिए। ये इनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होने का एक स्ट्रॉन्ग ट्रेट है। सेल्फ एज अ मेजर एसेट, इन्हें पता है कि मुझे अपने आप को तो मेंटेन करना ही हो इन ऑर्डर टू रन माई शो। ये बातें मुझे लगती बहुत सिंपल है, पर अगर इन ये जो 9 पॉइंट्स है इस पर एक बार कोई सेशन डिलीवर किया जाए ना, तो इट इज गोइंग टू बी लाइफ चेंजिंग सेशन। और यू कैन refresh your learning again with this session. Self as a major, asset. Entrepreneurs recognize that their well-being is a crucial for company asset. आपका ठीक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके काम में। पुअर बॉडी लैंग्वेज इज अ सेल्फ निग्लेक्टेड स्टेट। जो व्यक्ति अपनी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं रख सकता ना, इसका मतलब है वो अपना ख्याल ही नहीं रखता। तो अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है बीइंग एन एंटरप्रेन्योर।
Balancing personal health for energy and perspective contributes to sustained success. बैलेंसिंग पर्सनल हेल्थ, अपनी पर्सनल हेल्थ को आपने बैलेंस करके चलना है, उससे आपको क्या मिलेगी? एनर्जी, और एनर्जी से आप कंट्रीब्यूट कर पाएंगे अपनी सक्सेस। पर अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आपके पास एनर्जी नहीं है, तो फिर आप अपने आप को फोर्स करेंगे काम करने के लिए, विच इज नॉट गुड फॉर एन एंटरप्रेन्योर एंड द वर्क दैट ही और शी हैज अंडरटेकन। ईगो मैनेजमेंट, कीपिंग वंस ईगो इन चेक इज वाइटल। कभी भी गुमान ना हो अपने काम पर, अपने आप। हाँ, आप गर्व कर सकते हैं कि आप इतनी मेहनत करते हैं, पर घमंड नहीं करना है। यू कैन टेक प्राइड, बट यू कैन नॉट बिकम एन इगोइस्ट पर्सन। Keeping one's ego in check is vital. It is important. Building a financial reserve for unexpected needs and remaining open to new ideas ensures long-term stability and growth. और बच्चों, फाइनेंशियल रिजर्व रखना अनएक्सपेक्टेड, अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस और इवेंट्स के लिए, और रिमेनिंग ओपन टू न्यू आइडियाज एंश्योर्स लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो नए आइडियाज को वेलकम करते हैं, तो ये एक श्योरिटी है कि आप आने वाले कई सालों तक स्टेबल बने रहेंगे। और याद रखिएगा, जो व्यक्ति अच्छे आइडियाज को सिर्फ इसलिए वेलकम नहीं करता दैट ही चेक्स द सोर्स फ्रॉम वेयर गुड आइडियाज आर कमिंग फ्रॉम, ही विल रिमेन अनस्टेबल थ्रू आउट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जान। तो एंटरप्रेन्योर्स के अंदर एक ट्रेट होना चाहिए, दैट इज ईगो मैनेजमेंट। सेल्फ बिलीव, आत्मविश्वास, सेल्फ एस्टीम को बढ़ाता है। एंटरप्रेन्योर इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स, देयर कंपनीज एंड देयर पोटेंशियल फॉर सक्सेस। आपको अगर खुद पे विश्वास नहीं होगा, अपने प्रोडक्ट पर विश्वास नहीं होगा, अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं होगा, तो आप मानते हैं, सोचते हैं औरों को होगा। वो तो कभी भी नहीं करेंगे अगर आपको खुद पे विश्वास नहीं होगा। और खुद पे विश्वास का मतलब है, कम व्हाट मे बी द चैलेंजेस एंड सर्कमस्टेंसेस आर, आई एम गोइंग टू डू इट। द सेल्फ बिलीफ इज कॉन्टेगियस, ये फैलता है। अगर आपके अंदर सेल्फ बिलीफ है, तो जो आपका सेल्फ बिलीफ है वो सामने वाले का सेल्फ बिलीफ बन जाता है आप में, ये फैलता है। एंड पॉजिटिवली इन्फ्लुएंसेस स्टेक होल्डर्स, और जो आपके साथ बिजनेस में जुड़े होते हैं, आपके एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर्स, वो भी आपके विश्वास को एक्सेप्ट कर लेते हैं, एंड दे स्टार्ट अप्रिशिएटिंग यू एज अ पर्सन विद सेल्फ कॉन्फिडेंस। कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज, तो सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा बच्चों, अगर ये मुझ में नहीं है तो किसी और में तो, अगर ये मैं खुद में नहीं देख सकता तो और कोई मुझ में क्या देखे। दैट्स इंपॉर्टेंट। एक्सेप्टेंस ऑफ क्रिटिसिज्म एंड एडमिशन ऑफ मिस्टेक, गलतियां हर कोई करता है, मानता कोई नहीं। हर कोई गलती करता है, मानता कोई नहीं, और जो मानता है ना वही आगे बढ़ता है। गलती करना हर किसी के यू नो किस्मत में होता है, पर मानना हर किसी किस्मत में नहीं होता गलती। A healthy work environment encourages employees to express honest opinions even if they differ from the entrepreneur's view. Honest opinion देना चाहिए, चाहे वो किसी को हर्ट भी करे। You should use the words in such a way कि वो हर्ट करे भी लोगों को, अगर आप ओपिनियन ऑनेस्ट है, बट वो उसे फील ना करे। बात कैसे कहाँ कही जाए, कब कही जाए, तो ये मतलब बात का ना इम्पैक्ट बढ़ा देता है। तो पता होना चाहिए कि बात कब कहाँ कैसे करनी है। तो आपका एक ऑनेस्ट ओपिनियन भी फिर एक्सेप्ट किया जाएगा। एंटरप्रेन्योर्स एडमिट मिस्टेक्स एंड फॉस्टर अ कल्चर ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। एडमिट मिस्टेक करना ही ग्रोथ का वाइज है। अगर आपने ग्रोथ करनी है, तो जो गलतियां आप कर रहे हो उसे एडमिट करते रहिए, उस पर काम करिए, उसे इंप्रूव करिए। लोग आगे कैसे बढ़ते हैं? इसी प्रकार से बढ़ते हैं, जो गलती करते हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं, उन गलतियों को दोबारा रिपीट नहीं करते, और वो आगे बढ़ जाते। ये तरीका है आगे बढ़ने का, और एंटरप्रेन्योर को तरीका पता हो। स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, वैल्यू स्ट्रॉन्ग काम के प्रति। अगर दिन में 10 घंटे काम करना है, तो कम व्हाट मे बी द चैलेंजेस आर, काम करूंगा 10 घंटे। Entrepreneurs lead by example with a strong work ethic.
This not only sets a standard for employees, but also provides a competitive edge, especially when dealing with similar products or services. जो entrepreneur खुद से बहुत मेहनत करने का हैबिचुअल होता है, उसे टीम भी वैसे ही मिलती है। आप एक एमडी सोचिए, जो 7 बजे ऑफिस आते हैं, 9 बजे ऑफिस शुरू होता है, वो सारी फाइल्स चेक करते हैं क्या क्या ऑफिस में हुआ, और वो एम्प्लॉइज के बाद जाते हैं। आई एश्योर यू बच्चों, if this will be the trait of an MD or an entrepreneur, the company can never lag behind their contenders and competitors. छोटी छोटी कंपनीज होती है जब स्टार्ट होती है, 2 लोगों के साथ, 4 लोगों के साथ, 5 लोगों के साथ, 10 लोगों के साथ, और वो मल्टीनेशनल कंपनीज बन जाती है। रीजन इज दिस, योर कमिटमेंट टू वर्क शोज योर डिवोशन, योर कमिटमेंट टू वर्क शोज योर डिवोशन, और डिवोशन आदरणीय है। हर कोई चाहता है कि वो डिवोटेड व्यक्ति उसको मिले। काम भी चाहता है कि भैया मैं उसके पास जाऊं जिसके पास डिवोशन है मेरे साथ। सक्सेस भी उसी के पास आती है जो सक्सेस के प्रति डिवोटेड होता है, उसका आदर करता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है। कभी भी कैजुअल अप्रोच वाले व्यक्ति के पास ना सक्सेस आती है, ना उसकी कंपनी चलती है। बहुत ज्यादा केयर फ्री होने का मतलब है यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन सेल्फ इंप्रूवमेंट। जब आप अपनी इंप्रूवमेंट करते हो तो आपको थोड़ा सा सिंसियर और सीरियस होना चाहिए टू डेवलप दीज ऑल ट्रेड्स। सो बच्चों, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ टुडेस क्लास। में लास्ट के 9 पॉइंट्स को एक बार दोबारा रिपीट कर, बहुत जबरदस्त पॉइंट्स। और मैं जल्दी इस पर ना एक आई टेक अप अ सेशन, मैं एक अच्छा सेशन लूंगा इस पर। हाँ, पैशन फॉर द बिजनेस, ट्रस्टवर्दीनेस, ये बच्चों एसेंशियल एटीट्यूड्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर है। पैशन फॉर द बिजनेस, ट्रस्टवर्दीनेस एज एन एग्जांपल, flexibility with core value, fearlessness in the face of failure, timely decision making, self as a major asset, ego management, self belief, acceptance of criticism and admission of mistakes, and last but not the least, strong work ethic. So, with this, we have come to the end of today's class where we have taken these 4 very, very, very important points in part 2 from this unit. Definition of the word attitude, features of the word attitude, sources of attitudes, and essential attitudes of an entrepreneur. So, Bacho, do not forget. I'm really liking your comments and requirements uh, regarding your upcoming papers and examination. I'm really our team is working to give you the best we can. Rigorous practice section है, इसको प्लीज मत अवॉइड कीजिए। आप 1 घंटा लगाइए, आप क्लास वॉच करिए, आप रिगरस प्रैक्टिस सेक्शन करिए। उसके अंदर मैंने आपको वोकैबुलरी दी है आज की क्लास में से, जिसमें मैंने आपको वर्ड मीनिंग्स दिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में। मैंने आपको शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, आंसर क्वेश्चन के आंसर्स भी दिए, क्वेश्चंस दिए और उसके आंसर्स भी दिए आप। फिर मैंने सिनॉप्सिस दिया आज की क्लास का। फिर मैंने आपको 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए हैं, उनके आंसर्स दिए हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स with answers. So, Bacho, with this, we have come to the end of today's class. Stay strong, stay healthy, and keep watching Mavericks India Solution for this, very, very helpful content on entrepreneurship. So, until we meet next time, bye bye for now. God bless you all. Take care.